یہ ڈرگ نوسور سنس کشمیرس مز. शिक्षा जिंदगी है और जिंदगी शिक्षा है. تو اگر ہم بات کریں اننتناگ کی، یہاں پہ بہت زیادہ دقتیں ہو رہی ہیں اس چیز کے بارے میں. ایجوکیشن سسٹم میں کافی چینجز بھی آئی ہیں، جیسے کہ نیو ایجوکیشن پالیسی. دل میں خدا کا ہونا لازم ہے اقبال، دل میں خدا کا ہونا لازم ہے اقبال، سجدوں میں پڑے رہنے سے جنت نہیں ملتی. آداب ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا ہمارے پروگرام روبرو میں. روبرو اس کا مطلب ہی ہے لوگوں کے ساتھ روبرو ہو کے ان کے مسئلوں مسائل سننا اور اعلیٰ حکام تک پہنچانا. ناظرین، میں ہوں پروگرام کا ہوسٹ مرین مدثر. ناظرین، اسی غرض سے ہم آئے ہیں ضلع اننت ناگ میں. تو آج کریں گے اننت ناگ کے لوگوں سے بات اور جانیں گے کیا کچھ مسئلے ہیں ان کے. تو ناظرین، آئیے کرتے ہیں اپنے سوالاتوں کا سفر شروع. ہم اس وقت موجود ہیں اننت ناگ کے ایک پرائیویٹ تعلیمی ادارے میں، اور اس وقت اگر ہم اس پروگرام کی بات کریں تو کافی سارے اسٹوڈنٹس اس پروگرام میں آئے ہیں. ان سے جانیں گے، ہم ایجوکیشن پہ سب سے پہلے بات کریں گے، تو ان اسٹوڈنٹ سے بھی ہم جانیں گے، اور جو ساتھ بیٹھے ہیں ہمارے ساتھ ان سے بھی جانیں گے کہ ضلع اننت ناگ میں جو تعلیمی نظام ہے ان کا رجحان کیسا ہے. ایجوکیشن سسٹم میں کافی چینجز بھی آئی ہیں، جیسے کہ نیو ایجوکیشن پالیسی یا پھر کافی سارے ڈیولپمنٹس جو ایجوکیشن سسٹم میں آئے ہیں. جیسے کہ اگر ہم پہلے دیکھتے تھے کہ پہلے بچوں کو تھوڑا فورس کیا جاتا تھا اسکول جانے پہ، لیکن ابھی بچے خود اسکول جانا چاہتے ہیں، ان میں خود وہ انٹرسٹ بن چکا ہے. تو یہ بھی میں سوچ رہا ہوں کہ یہ بھی ایک ٹائپ کا ڈیولپمنٹ ہے. یہ اس لیے ہے کیونکہ ہمارے بچوں جو ہے وہ اب ایجوکیشن سسٹم کو سمجھنے لگے ہیں، اور ایجوکیشن سسٹم میں کافی ساری چینجز آئی ہے. جیسے اس میں کافی ساری ایکسٹرا کیریکولر ایکٹیویٹیز بھی ہوتی رہتی ہے. تو جو بچوں کے لیے فزیکلی، مینٹلی اور ایجوکیشنلی ڈیولپ کرتا ہے، تو کافی ساری چینجز آئی ہے، کافی ڈیولپمنٹ ہوا ہے ایجوکیشن سسٹم میں. تو لیکن ابھی پورا ڈیولپمنٹ نہیں ہوا ہے، ابھی کافی ڈیولپمنٹ کرنے کی ضرورت ہے. یہ تو نہیں کہیں گے کہ 100% ابھی چینجز آ چکی ہیں، لیکن کچھ حد تک چینجز آ چکی ہیں. بہت ساری چینجز کرنا ابھی بہت زیادہ ضروری ہے. یہ تعلیم یہ برونٹ واریاہ پتھ، وۄنۍ گٔیہِ برونٹ واریاہ مگر خٲمی چھِ یَتھ منٛز واریاہ. یِم زن گامن منٛز سکوٗل چھِ، چاہے پرائیویٹ چھِ یا سرکٲری سکوٗل چھِ، تتہِ چھِ فیسلٹی کم یِمن بچن. اوے چھِ دوٗر دراز علاقن ہٕنٛدۍ پتھ یِم بچہِ. لہذا چھِ گورمنٹس اپیل کہ پتھ کھورِ علاقن کُن دِیِن پوٗرٕ توجہ تاکہ یِم سٲنۍ بچہِ پکہن برونٛٹھ. ایجوکیشن یا شکشا کہہ سکتے ہو. شکشا زندگی ہے اور زندگی شکشا ہے. اور یہ کہنا بھی ٹھیک رہے گا کہ ایجوکیشن خود میں ایجوکیشن ہے. لائک این کڈ، جب وہ پیدا ہوتا ہے تو وہ اپنی بات سے لے کر بڑا ہونے تک جو کچھ بھی اپنے سراؤنڈنگ میں سیکھتا ہے تو وہ سب ایجوکیشن میں آتا ہے. تو پہلی بات یہ کہ ایجوکیشن صرف سکولز تک سیمت نہیں ہے. ایجوکیشن کا مین پرپز یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایجوکیشن تھرو آؤٹ دا لائف چلتی رہتی ہے اور کوئی بھی اسے روک نہیں سکتا. بیسیکلی کنٹینیوس پروسیس کا نیچر ہے ایجوکیشن کا. اور انڈیا میں ایجوکیشن کافی ڈیولپمنٹ ہو چکی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی میں کچھ ایسی خامیاں ہیں ہمارے سسٹم میں جو کہ ابھی فلفل کرنا ضروری ہے. میں ایز اے کشمیری اپنی مدر ٹنگ کو چھیڑنا چاہتا ہوں کہ ہماری جو مدر ٹنگ ہے وہ کشمیری ہے، اور کشمیریت کو اضافہ کیسے ملے گا ایجوکیشن سے. تو جو یہ بات سر نے ابھی کہی کہ اب نئی ایجوکیشن پالیسی میں کئی ساری تبدیلی آئی ہے کہ جس کی جو مدر ٹنگ ہے اس میں اس کو پڑھایا جائے اور ایجوکیشن پر فوکس کیا جائے. اب سروے کنڈکٹ کرائے جائیں اور ایک الگ سے ہاؤسز یا ڈپارٹمنٹس بنائے جائیں جو کہ اس کی کام ہو رہا ہے، سکولز میں اپلیکیشن ہو رہا ہے. بیسیکلی اگر یہاں بھی دیکھیں تو ابھی بھی یہ امپلیمنٹ ہونے کے بعد بھی
एजुकेशन उर्दू में ही ट्रांसफ़र की जाती है। तो अलग से डिपार्टमेंट बनाने होंगे जो ये चेक करेंगे कि हाँ प्रॉपरली स्कीम्स काम कर रही हैं या नहीं। तो जैसा कि बात हम करते हैं एजुकेशन के रिलेटेड, तो अभी जो बच्चे स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, एजुकेशन ले रहे हैं, तो वो जो एजुकेशन है, उस एजुकेशन के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा आ रही है कश्मीर में, ऑल इंडिया में। तो इंडियन गवर्नमेंट से यही गुजारिश है कि आप कुछ ऐसे चेंजेस लाइए इस एजुकेशन सिस्टम में, जैसे कि पूरे ऑल इंडिया में बेरोज़गारी की कोई भी गुंजाइश ना हो। हमें ज़्यादा तालीम हासिल करनी चाहिए, हमें मेहनत करनी चाहिए, तभी हमारे पेरेंट्स की ड्रीम्स पूरी होंगी, तभी हमारे ब्रदर्स की ड्रीम्स पूरी होंगी। हमें ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन हासिल करनी चाहिए, खास करके लड़कियों को, क्योंकि लड़कियों को ही ज़्यादा आगे बढ़ना है, बिकॉज उनके खर्चा ज़्यादा है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपका जो एजुकेशन इदारा है, आपका जो स्कूल है, वहां पे आपको कैसी तालीम हासिल होती है? सर, हमें बहुत अच्छी सी तालीम हासिल होती है, वहाँ पे गेम्स होती है, टाइम पे क्लासेस लगती है। हमारे जो प्रिंसिपल है, खासकर मिस्टर मंसूर सर, वो हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं अबाउट द एजुकेशन, ज़्यादातर एजुकेशन के लिए वो हमें आगे बढ़ाना चाहते हैं। वो हमें मदद करते हैं पूरे, मतलब हमें किसी भी चीज़ की कमी नहीं रखते हैं। वो हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं, हेल्प। असल वत हावन तालीम जी इंसान सिंद खतर अख नियामत अख नूर अख, इसलिए इंसान चाहे मोल चाहे मोज ये कोशिश करान ये बच्चे गोस परुन, ये लगे कुन मतलब रच वत कुन, तो अमिस मिल है हर वक्त कामयाबी तो कामरानी। तो मगर ये बच्चे तक इंसानस, मगर ये बच्चे तक सोचन वोल समझन वोल आसन, ये गमिस चाहे अमिस मोल मजदूरी करान या कह बिजनेस करान या कह सर्विस करान, ये ग सोचुन ये मल या माज यम मे टाइम मिसाल दिवन स्कूल गसन खतर, तो ये गत यह सा ये खास ख्याल, चाहे मजदूरी अमिस मोल करान, यह गमिक खास ख्याल थवन, क्या सुबह नीरान शामन यह माने खतर करान, तो ये गमिक ये खास ख्याल थवन ये मोल क्या माने खतर करान। तो बाकी टीचर यमन तह पे सोचुन ये मोल मोज अमिस त्रावन दह मिसाल थवन यन, तो यमन तह पे सोचुन चाहे टीचर चाहे हुकाम अतन चाहे कुस अतन, अमिस तह पे सोचुन यह सा ये यम बच्चे यम मजदूरी करान, अमिस मोल मजदूरी करान, तो यमन तह पे सोचुन अमिस कुन खास ख्याल थवन। तो बेचु यह सा ये ब्याक चीज़, इंसान छुन तालीम वराई अम सुन मकसद छुन कहाँ, तो तालीम इंसानस हावन रच वत रच कामयाबी, क्या अल्लाह ताला फरमावन इल्म नूर, इल्म नियामत, इल्म इंसानस ज़रूरी, इल्म वराई इंसानस कहाँ कदरी। तो इल्म गाश, इल्म एक ऐसी लाजवाल नियामत है जिसको न चोर चराने का खतरा और न आग जलाने का। तो इल्म लाजवाल नियामत, इल्म सती इंसानस रच वत यवन। जैसे कि इस ब्रदर की हमें गवर्नमेंट को ऐसी स्कीम्स, ऐसी चेंजेस लाने चाहिए कि ताकि अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म हो जाए। इसमें एक पॉइंट और ऐड करना चाहूँगा, वो ये है कि हमें अपनी एजुकेशन सिस्टम का सिलेबस एवरी ईयर रिवाइंड करना चाहिए। एक एग्जांपल से समझते हैं, लास्ट फ्यू इयर्स आप कहीं भी पता कर लीजिए, वहाँ क्या हुआ था कि एक रिसर्च की 1000 इंजीनियर्स पर, उन्हें एक प्रॉब्लम थी, उन्होंने जब प्रॉब्लम सॉल्व की तो मोस्ट इंजीनियर्स की सेम मेथड से वो सॉल्व कर रहे थे, कोई उसमें नई इनोवेशन नहीं थी। तो बेसिकली ये मेन गलती एजुकेशन में है, क्योंकि हमारा सिलेबस लास्ट कई सालों से नहीं बदलता है। तो हर साल एक सेपरेट हाउसेस रखो जो कि यही एनालिसिस करें कि वर्ल्ड में क्या चल रहा है, और उसके बेस पर कि रियल एजुकेशन दी जाए प्रोफेशनल फील्ड में, ताकि नई इनोवेशन इंडिया को हम आगे लेकर जा सकें।
नाज़रीन, जहां हम बात अनंतनाग की करते हैं तो अनंतनाग को नागू का शहर भी कहा जाता है। तो इन नागू की सफाई के लिए हमें क्या कुछ करना चाहिए और उन नागू को बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, वो हम जानेंगे यहाँ की आवाम से। सनिस वेजबेरिस मज छ कल यम छ वारिया गंद तो साने माजे बेन्य कोर यम छ सुबस कूड़ करकट कड़न त्रावन यमन नहरन मज यमन सानन दरियावन मज यम सत सोन ये प्यारनुक आब चन्नुक आब सोरे खराब गो। यम छ पनुन आंगुन साफ थावन, पनुन अंद्र मकान साफ थावन, पत ये पनुन कूड़ करकट नेरन छुक सम नहरन मज लगावन यथ मज यस सन नहर छ ज़रात सीजनस मज दिवान। स नहर छ तीज गंद तो गलीज आमज करन कि साने माजे बेन कोर ये तरन फिक्र की कि यह मे सीजन जरूरत यह आब स ब्लॉक गसान पन हेकान स सीजनस यूज कर बे सोन दरिया जहलम यह साने माजे बेन बोय मोल कह अम तह सठा गंद कोर्मुत ताकि कर पन्न माजन बेन बायन अपील कि यह पन कूड़ करकट डस्टबिन सुबस यह लगो डस्टबिनस मज यम लगिव दरियावन मज यम लगिव यमन नहरन मज अम सन बच्चे गसान खराब, अम सोन सेहत गसान खराब, अम हर कह चीज सोन जमीन गसान खराब, सोन ज़रात गसान खराब। इसलिए छस बह तमाम बेनन माजन बायन गुजारिश करान यह कूड़ करकट करो डस्टबिनस मज, यह त्रो डस्टबिन सुबह टाउन गाड़ी तह छो टाइम 5 मिनट तथ मज तिम 5 मिनट करो तुम नबर कुन यह डस्टबिन त्रो तथ मज। जैसा कि हम बात कर रहे हैं सफाई पे, जो कि हमारी माएँ बहनें हैं वो ज़्यादा सफाई नहीं रखते और जो हमारे ये हमारा पानी है ये भी बहुत गंदा करते हैं। जो हमारे घर में निकलने वाला ये सब कूड़ा कचरा होता है तो ये वो इन नदियों में डालते हैं। जैसा कि हम ये नहीं सोचते हैं कि अगर हम नदियों में एक कूड़ा कचरा डालेंगे कि कोई इसी पानी का इस्तेमाल करता होगा, तो हम ये नहीं सोचते हैं। यहाँ पे वो आती है ना कचरे वाली गाड़ी आती है, जैसा कि हमारे घर में जो भी कचरा निकलता है हम वो उस डस्टबिन में फेंके फिर वो जहाँ पे ले जाएंगे तो वो ठीक रहेगा। लेकिन जो हमारा पानी है हम वो गंदा नहीं करेंगे और हम अपना पानी खुद गंदा करते हैं, फिर हम बोलते हैं वो ये जैसा कि हम अपना पानी खुद गंदा करते हैं। तो जो सफाई आधा ईमान है। तो अगर हम बात करें अनंतनाग की, यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही है इस चीज़ के बारे में। लाइक म्यूनसिपल कमेटी की बात करें तो शाम के टाइम सफाई होती है, अगर सुबह मॉर्निंग में सफाई हो जाए तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। और रही बात हमारे घर की, तो कूड़ा कचरा जो भी होता है हम ऐसे ही फेंक देते हैं कहीं पे भी। अगर हम गार्डनों की बात करें, कहीं पे जाते हैं तो ऐसे ही फेंक देते हैं। अगर हम मेन पे हम बोलते हैं कि कशीर से प्योर, अगर हम उसकी बात करें तो अनंतनाग में बहुत ज़्यादा टूरिस्ट प्लेसेस है। पहलगाम की बात करें, मैं रिसेंटली वहाँ गया तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा मतलब गंदा था। लाइक वहाँ पे टूरिस्ट प्लेस जानवर थे तो उनकी तरफ से ना वो ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिल रहा है। तो मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बात करना चाहता हूँ, मैं अपील कर रहा हूँ जो भी है तो इस माहौल देख लीजिए अच्छे से ताकि माहौल सही रहे। जैसा कि हम बात कर रहे हैं सफाई पे, मेरी नानी कहा करती थी हमारी जो नहरें नदी है हम उसमें पहले पानी पिया करते थे, आज वो इतनी गंदी हो गई है हम उनकी तरफ देखते भी नहीं है। तो हमें लोगों को अवेयर करना चाहिए कि इन नदी नालों में ये गंदगी ना करे, कूड़ा कचरा जो है उनमें ना फेंके। तो टाउन हॉल की जो गाड़ी आती है उसी में कचरा डालना पड़ता है, तो वो जहाँ ले जाए वो ठीक रहता है। थैंक यू। सफाई निस्ब ईमान है, हमारे मज़हब में भी बोला जाता है सफाई निस्ब ईमान है। जो कचरा निकालते हैं घरों में भी, सड़कों में भी, मार्केट में भी, डस्टबिन का कोई इस्तेमाल नहीं करता है, खाली ऐसे ही फेंकते हैं, यूज़ करते हैं आइटम और ऐसे ही फेंकते हैं। जैसे कि म्यूनसिपल कमेटी आती है वो सफाई करने आती है, उनका भी ध्यान रखती है, उनका भी कोई सुनता नहीं है।
जैसे कि सभी ने अपने अपने रिपोर्ट्स दिए हैं रिगार्डिंग द एनवायरनमेंट एंड क्लीननेस, तो मैं टोटल एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ कि पहले हमें सेल्फ रिस्पॉन्सिबल रहना चाहिए रिगार्डिंग द एनवायरनमेंट। क्या खुद से हर कोई चीज़ चेकआउट कर ले। क्या अगर हम देख लेते हैं, हम कहीं पे भी जाते हैं तो जो हाथ में कुछ खाने के लिए मिलता है, चाहे कहीं से चिप्स वगैरह या जो कुछ भी हम यूज़ कर रहे हैं, वो हम ऐसे ही बिना सोचे कहीं पर भी फेंक लेते हैं। तो फर्स्ट स्टेप हमको खुद उठाना चाहिए, फिर जाके बाकी फर्दर गवर्नमेंट सोचती है। थैंक यू सर। बात यहाँ पे एनवायरनमेंट की भी हुई और एजुकेशन की भी हुई। अब बात जरा यूथ की करते हैं, उस यूथ की जिसको पिछले कुछ वक्त से एक बहुत बड़ी बीमारी ने खोखला कर दिया है। ड्रग्स की मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ। यहाँ के लोगों से जानेंगे कि ड्रग्स क्यों वादी कश्मीर में आम हुआ और क्या वजह है जिसकी वजह से यहाँ का यूथ जो है वो ज्यादा मुलव्वस हुआ ड्रग्स में, और हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिसकी वजह से हम अपने इस यूथ को इस बहुत बड़ी बीमारी से दूर रख सके। जैसे कि ड्रग्स की बात करें, ड्रग एक ऐसी बीमारी है जो न केवल खुद को ही, ड्रग करने वाला न केवल वो खुद ही, बल्कि अपनी फैमिली, अपने समाज और अपनी सोसाइटी को भी अपने साथ बर्बाद कर लेता है। तो इस चीज के लिए अनंतनाग में भी एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम हब्बा खातून ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें एक पर्टिकुलर यूनिट इन्होंने रखा, साउथ कश्मीर आर्ट एंड ड्रामा यूनिट, जिसके थ्रू यंग यूथ को ये डाइवर्ट करते हैं, बिजी रखते हैं, टैलेंट के रिलेटेड अपलिफ्ट करते हैं। उस चीज के साथ इनको कहीं ना कहीं हम बात करें स्किल डेवलपमेंट के रिलेटेड, स्किल डेवलपमेंट के साथ भी ये जोड़ देते हैं, उनको बिजी रख देते हैं, ताकि मेन मुद्दा क्या है वो ये है कि ये ड्रग्स यानी ये जो वबाल वाली बीमारी है इससे ये दूर रहे। ये ड्रग नौसूर सनिस कश्मीरस मज, ये म्योंद सनिस कश्मीरस मज। अम ड्रगुक न्यास तो नाबूद गोस गछुन। यह खास कर बिजबिहारस मज युस जन तुलखन इलाक छु, अत मज यह ज्यादा लबने यिवान। अत हज करे SDPO साहबन वारिया रुकावट कि तम कर बिजबिहारस मज वारिया काम अम खातिर कि तम अनाव तथ बिजबिहारस मज वारिया सुधार। अत मज हज सन लकट नौजवान मुबतला गई, चरस छु, कोरेकस छु, टिश्यू छु, शराब छु, वारिया चीज छ यम जन सन नौजवान अत मज छ। सानन गरन मज छ कह माजि बेनि यमन जन खानदार छ आमत करन, तिहिंद खानदार ते छ अत मज मुलवस। तिम सानि बेनि, तिम सानि कोरि छ केंचन वरियन तिमन खानदारन सत गर बसावन, पत छ तिम नन्यर गसन तिमन पन्नन खानदारन हुंद। तिम छ यवन थानन मज एप्लीकेशन हे सन खानदार छ यथ मज तिहिंद बच्चे तिहंदन बच्चन छ तम सतन असर पेवन। तिमन छ गरस मज तथ पे आसान डेली लड़ाई पन्निस खानदारस सत, अत कुन मत गस्तो। पत छ तिहुंद लकुट बच्चा आसान बोजन, सु छ यवन अत सतन दुह दिश यह बूझित तंग, सु छ गसन डिप्रेशनस मज। तो जैसा कि सब लोगों ने एक ओपिनियन दिया है ड्रग्स के रिलेटेड, लेकिन उनके जो दो मेन कारण हैं वो मैं बताऊंगा। सबसे पहला तो जो एक बच्चा होता है, पहली एजुकेशन जो एक बच्चे की होती है वो माँ बाप होते हैं। दूसरा जो एक बच्चे का फिर वो चाहे बच्चा हो या बच्ची हो, उसका फ्रेंड सर्कल होता है। तो गुजारिश मुझे उन माँ बाप से है कि आपके घर में जो भी बच्चे हैं उनके सामने जो आप नशावर चीज़ें पीते हैं उस वजह से जो बच्चा होता है वो स्टिमुलेट होता है। तो दूसरी बात माँ बाप क्या करते हैं, अपने जो बच्चा होता है उसके हाथों से ना सिगरेट लाते हैं दुकान से, उस वजह से भी ये बच्चा स्टिमुलेट होता है। दूसरी बात जो बच्चे का फ्रेंड सर्कल होता है वो ये तो 80% बच्चे पे इफेक्ट करता है। जो बच्चे का एक फ्रेंड सर्कल होता है वही फ्रेंड सर्कल एक बच्चे को अच्छी तरबियत भी देगा और बुरी तरबियत भी देगा। तो उन माँ बाप से मुझे गुजारिश है कि अपने बच्चे का ना वो फ्रेंड सर्कल देखिए कि वो किस फ्रेंड सर्कल में रह रहा है, उसका फ्रेंड सर्कल अच्छा है या उसका फ्रेंड सर्कल बुरा है।
نہ حظ یِم سٲنۍ یِم بٲے چھِ یِم چھِ سِگریٹ چٮ۪وان یِم چھِ ژوٗرٕ کَران یِم چھِ واریاہ کینٛہہ کَران یِمن چھِ وَنان مول موج اَتھ پٮ۪ٹھ ما پٔکِو یہِ ما کٔرِو یِم حظ چھِ مان ژٕ واریاہ کینٛہہ کَران یِم چھِ اَتھ مان ژٕ سِگریٹ چٮ۪وان مان ژٕ واریاہ کینٛہہ کَران یہِ ترٛٲیِن یِم پَتھر. جو کشمیر میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو اکثر آبادی ہے یا اکثر یوتھ ہے وہ ڈرگس جو ہے ان کا استعمال کرتے ہیں. یہ ایک بیماری جیسی بن گئی ہے کشمیر کے یوتھ میں. تو آئی ووڈ لائک ٹو سے کہ گورنمنٹ ہیز ٹو ٹیک ایکشن آن دس اینڈ جو کہ پیپل جو ڈرگس میں امپلیمنٹ ہے یا ڈرگس میں انوالوڈ ہے ان کی پراپرٹی سیز ہونی چاہیے. اینڈ آلسو دے شوڈ ہیو ٹو گیو اے پنشمنٹ. دا گورنمنٹ شوڈ ہیو ٹو گیو اے پنشمنٹ ٹو دیم لائک جسٹ کیپ دیم ان ٹو دا پریزن اینڈ آل دیٹ. اینڈ آلسو دے ہیو ٹو سیز دیئر پراپرٹی. تھینک یو. چھس اپیل کران یمن کہ یم ڈرگس کران یمن پز گۄڈنیتھ گرے مٲلِس ماجہِ ہدایت دیُن. تمہِ پتہٕ یُس ڈرگس کٕنان آسہِ ییٚتٮ۪ن یہِ وۄپدان چھُ یمن پزِ تِہنٛز پراپرٹی سیز کرٕنۍ. یمن پزِ اَتھ پٮ۪ٹھ قدم تُلُن. یمن پزِ پراپرٹی منٛز سیز کرٕنۍ. یِم ہیٚکن یمن جیل سوٗزِتھ. امہِ سۭتۍ ہیٚکہِ سون ڈرگس کم گٔژھِتھ. سٲنۍ جوان ہیٚکن پننہِ ہایتہِ منٛز بیٚیہِ واپس یِتھ. امیُک وجہ چھُ یہِ کہِ بے روزگٲری چھِ بچن. بیٚیہِ چھُ مٲلِس ماجہِ ہُنٛد توجہ کم مِلان. یِم چھِنہٕ پٮ۪ٹھ دھیان تھاوان. ونکٮ۪ن چھُ ساروی کھۄتہٕ فون. مٲلِس تہِ چھُ فون ماجہِ تہِ چھُ فون بٲیِس تہِ چھُ فون بیٚنہِ تہِ چھُ فون. الگ الگ کمرن منٛز گٔے یِم فون وٕچھنہِ. أکِس اکھ سۭتۍ مُلاقات چھُنہٕ گژھان کینٛہہ. یِم چھِ پننٮ۪ن پننٮ۪ن فونن سۭتۍ آوُر لگان. بچس توجہ کم مِلان. ییٚمہِ سۭتۍ یہِ یلہٕ چھُ روزان. صبحن وۄتھان تہٕ نیران کرُن پنُن کار کیٛاہ آسٮ۪س کرُن. یِمن چھُنہٕ فرصتٕے مِلان پننٮ۪ن بچن وننہٕ خٲطرٕ کہِ تُہۍ کتہِ ٲسوٕ. پتہٕ چھِ یِم کران کٲم یِمن یِکُن خۄش گژھان تُکُن. اتھ پزِ مٲلِس ماجہِ توجہ دیُن. فون 10 منٹن پتھر تھاوُن. پانہٕ ؤنۍ کاپریشن کرٕنۍ. اتھ منٛز توجہ دیُن. ہے گوبرا اوسُکھ کتہِ ژٕ کران کیٛاہ چھُکھ ژٕ. پننِس ٹایمس یِمن خیال تھاوُن کتھ انٛدس چھِ یِم گژھان. امہِ سۭتۍ روزِ بچہِ تہِ قوبوٗ مول موج تہِ قوبوٗ گرٕ تہِ روزِ سیف. امہِ سۭتۍ چھُنہٕ کانٛہہ پرابلم تیٚلہِ ییٚلہِ پنُن مول موج یِمن توجہ دی. باقٕے وسلام. ड्रग जो कश्मीर में कैंसर से भी ज़्यादा फैल रहा है, इसकी बड़ी वजह यह है कि माँ बाप को अपने बच्चों को तालीम अच्छी तरह तालीम देनी चाहिए और उन लड़कों के साथ रोके जो ड्रग करते हैं उनके साथ रोकने से मना किया जाए. और गवर्नमेंट को भी चाहिए कि वो इन ड्रग वालों को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए. इस्लाम में ये हराम ही है, ये जुर्म है. लेकिन पहले ये बच्चों को दीनी तालीम देनी चाहिए. उसमें पता चलेगा कि ये ड्रग जो है हराम है और वो उन लड़कों से भी दूर रहेंगे जो ये ड्रग करते हैं. मगर वो तालीम की वजह से माँ बाप को भी चाहिए अपने बच्चों पर तवज्जो दें. वो कहाँ जा रहे हैं, दिन को कहाँ जा रहे हैं, रात को क्या कर रहे हैं, अपने अपने कमरों में सो रहे हैं, वो देखना चाहिए कि उनको क्या कर रहे हैं बच्चे. और दूसरी बात यह है कि जो गाँवों के आज तो है पंच सरपंच बने हैं वो बंडों की तरफ लगे हैं. नाली ये रुपया ये ड्रेन शेन बनाते हैं लेकिन उसकी तरफ उनको तवज्जो नहीं. गवर्नमेंट को उनसे ये कहना चाहिए कि ये ड्रग वालों की तरफ भी तवज्जो है. और जो गाँवों के जी शऊर लोग हैं उनको भी अपने गाँव में या दूसरे गाँवों की तरफ भी इस ड्रग की तरफ तवज्जो देना चाहिए. बाकी जो उलमाए किराम है, हमें मुसलमानों को पता है कि कुरान में लिखा है कि ये ड्रग हराम है, ये गुनाह है. ये जो उलमाए किराम है वो बताते हैं जुमा के दिन वाज तबलीग होता है, हर जुमा में मुसलमानों को बताते हैं कि ये गुनाह है, ये इसकी तरफ न जाए. लिहाजा मैं तमाम बच्चों से भी जो भी बच्चे हैं कश्मीर में, चाहे मुसलमान हैं, हिंदू हैं, कोई है, सिख है, ईसाई है, उनसे गुजारिश है कि इस ड्रग की तरफ मत जाओ या अपनी जवानी बर्बाद करते हैं हम. नाजरीन, जैसे कि आपको मालूम ही होता है हर काम का अपना वक्त होता है, उसी तरह हमारे प्रोग्राम का भी वक्त यहीं पर समाप्त हो रहा है. और अगर आप चाहते हैं रूबरू टीम अगला दौरा आपके एरिया में करे तो दिए गए सोशल मीडिया साइट्स पे राबिता करें. तब तक के लिए दीजिए रूबरू की टीम को इजाजत. अल्लाह हाफिज.
वजनो मै दूरिये वलै कोस्तूरिये उर मै त्रामी